Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will continue the series of Agriculture at a Glance book by Sharma, and the today's topic is Environment Science and Ecology. And this book is very important for all the agriculture students who are preparing for agriculture exams like IBPS, AFO, NABARD, IFCO, etc. If you want more such videos, then you can check the playlist of the channel. From there you will find number of videos regarding agriculture. You will find Agriculture at a Glance book, but apart from this you will also find Arun Katan volume 1, which is already completed, Arun Katan volume 2, which is not yet completed, but I think last some 2 to 3 chapters are remaining. It will be completed soon. And the next book is Agriculture at a Glance by Sharma. So these are some important books of agriculture exams, and you will learn and practice more from this channel. So if you have missed any of the video lecture, you can check the playlist and watch it. So now we start today's topic, that is environment science and ecology. But before that, I request you to like this video and share this video more and more with your friends, and don't forget to subscribe this channel. Now here we start this chapter 12, environment science and ecology. The first question is, the sum total conditions in which organism live is called its environment. Okay, means the sum total conditions in which the organism is living. For example, a human, animal, the things which surrounds us, it constitutes our environment. Okay, and that total condition, the total conditions may be physical condition, maybe the chemical conditions, or maybe the biological conditions. Okay, physical conditions like our temperature, rainfall, chemical constitutions like our different chemical properties surrounds our nature, and biological means the plants and microorganisms like soil microflora and fauna. Similarly, different kinds of animals, they all constitutes our environment. So sum total of all that conditions is called environment. And you will note down one more important fact regarding environment is that the environment is derived from the French word. Environment comes from French word environnement, which means surround or surroundings. Next question. Question number 2. A self-supporting community, plants and animals interacting with each other, and the non-living environment provides a balanced system that is called ecosystem. Ecosystem constitutes biotic and abiotic components. Okay, constitutes abiotic as well as biotic components of environment. Abiotic means the things which are non-living in nature, and biotic means the things which are living in nature, means they contain life. Okay, so both animals and plants, they are biotic, and in living parts like again like soil, which is non-living, air, water, which are non-living in nature, so they are constitutes under abiotic component. So when both the components like abiotic and biotic component, I mean living and non-living components, are interactive, they forms a system known as ecosystem. Next question. The word ecosystem coined by, so you have to name the scientist who coined the term ecosystem. Ecosystem term coined करा था Panslee ने. Okay. Next question. The region existing between two ecosystem which contains species of both ecosystem. Okay, suppose this is one ecosystem and this is second ecosystem. अब क्या होता है कि in between these two ecosystem, यहाँ पे जो species present होती हैं, the existing species which exist in these between these two ecosystem, they are referred as ecotone. Means दो ecosystem के बीच का जो region होता है, that is known as ecotone. Next one. The study of interaction between living organisms and environment is called ecology. जब living organisms का environment के साथ क्या interaction होता है, that is called ecology. For example, we are human beings. So humans are
सराउंडिंग विद द इन्वायरमेंट, ठीक है. एंड व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन अस humans. As a human we have some interaction with our environment. That interaction is referred as ecology. Okay, we are surrounded by many living entity, many living creatures as well as some non living entity also. तो हमारे region, हमारे surrounding में जितने भी living as well as non living part जो होता है that constitutes our environment, और हम उनसे किस तरह से interact होते हैं. जैसे for example temperature is one of the important factor of environment. टेम्परेचर हमारे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किस तरह से करता है, लाइक समर्स में हम किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, विंटर्स में कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं. सिमिलरली अदर कंडीशंस लाइक बात करें टेम्परेचर की हो गए, इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस होती हैं, सॉइल हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है, हमको इंटरेक्ट करता है, बिकॉज सॉइल इज़ अल्टीमेटली अ habitat, natural habitat for the growth of plants. So we can grow different varieties of plant into the soil. So ultimately this also interact us, ठीक है. We are obtaining our food from plants. So this is a type of interaction, and that interaction between our living and our environment is termed as ecology. Next question, the term ecology coined by, तो ecology term किसने coin कराया? The term ecology was coined by Haeckel. Earlier we have सी इकोसिस्टम. तो ध्यान रखना इकोसिस्टम पूछा जाएगा तो टेंसले ने दिया है, ठीक है. और अगर इकोलॉजी पूछा जाए तो इकोलॉजी दिया है हैकेल ने, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर जो साइंटिस्ट टर्म कॉइन कर जाते हैं इनके टर्म्स किस जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और सबसे पहले हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट क्या है, और इन्वायरमेंट टर्म जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है. बुक में मेंशन नहीं है बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको नोट डाउन करना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. इकोसिस्टम कॉइन्ड बाय टेंसले, इकोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय हैकेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, large portion of the earth with similar climate, soil, plant, animal life community is known as. ओके, एक लार्ज पोर्शन होता है हमारी अर्थ का जिसमें सिमिलर टाइप का क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट, एनिमल, डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं. दैट पार्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. ओके, बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में. दैट पार्ट कंस्टिट्यूट्स बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ कंटेन्स अ थिन region known as biosphere in which life exists. ठीक है, तो बायोस्फीयर में मेनली क्या होता है कि डिफरेंट क्लाइमेट, सॉइल ये सब एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन बायोस्फीयर का वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे 3 अलग अलग बायोस्फीयर्स इंटरैक्ट करते हैं. वो 3 अलग अलग बायोस्फीयर कौन होते हैं? दे आर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. ओके, नाउ व्हाट इज दीज टर्म्स सिग्निफाई? सो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन देखें तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस या ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस या फिर वी कैन से एयर. ठीक है, तो हमारी अर्थ को एक सराउंड करने वाला एक लेयर होती है ब्लैंकेट की जो कि इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं प्रेजेंट. एयर बोल सकते हैं हमको. दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अवर एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर की बात करें, हाइड्रोस्फेयर का मतलब है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर. तो जितनी हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स अवर हाइड्रोस्फेयर. एंड वन मोर दैट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का मतलब होता है द सॉइल. ठीक है, in our environment the soil constitutes lithosphere and the point where these 3 all points are interact, जहाँ ये तीनों interact होते हैं जैसे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे interact होते हैं that interaction is referred as बायोस्फीयर. ओके, उस इंटरेक्शन को हम बायोस्फीयर कहते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. बिकॉज इफ़ यू वांट टू एग्जिस्ट अ लाइफ तो हमें तीनों चीज़ों का, तीनों कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है. इट इज़ नेसेसरी कि तीनों कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये तीनों आपस में इंटरेक्ट हों. जिस पॉइंट में इंटरेक्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ वाटर or 70% global is occupied by hydrosphere. Next one, the characteristics of the type of environment where an organism normally lives, that is called habitat.
ठीक है। रहने की जो प्लेस होती है, जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढाल सकता है, रहता है, वहाँ पे लिविंग प्लेस कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the population of the different species living and interacting in the same ecosystem that constitutes a community। ठीक है, माने डिफरेंट ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन का, सपोज ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये किसी दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन होती है, तो ये जब पॉपुलेशंस डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करती है, वो भी सेम इकोसिस्टम में, हमारा जो अर्थ है, हम इस अर्थ में कितने नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमंस के साथ साथ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो दे फॉर्म्स अ कम्युनिटी, उसको हम बोलते हैं कि वो कम्युनिटी है। नेक्स्ट वन, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा एंड फौना, इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी हमारी अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सम टोटल जो उनका होता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना मीन्स रिलेटेड टू एनिमल स्पीशीज़। ओके, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरा प्लांट है और फौना एनिमल है। तो सिंपल्स को याद करते हैं। जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा का मतलब आप याद रखो, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, और फ्लावर किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। ओके, एज सिंपल। नेक्स्ट वन, द एनवायरमेंट विच मेक्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, दे आर रिफर्ड एज बायोटिक एनवायरमेंट, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, दे आर लिविंग। ठीक है, तो बायोटिक का मतलब होता है द लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें लाइव होती है। प्रोड्यूसर्स मेनली प्लांट्स होते हैं, सो प्लांट्स आर लिविंग क्रिएचर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? वी ह्यूमंस, और मे बी सम हर्बीवोरस एनिमल, तो दे आर ऑल्सो लिविंग। डिकम्पोजर्स में मेनली क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एंड दे ऑल कंसिस्ट, दे ऑल आर हैविंग लाइव, इन सब में जान है, लाइव है, तो दे आर कंस्टिट्यूट्स अवर बायोटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, एबायोटिक इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो एबायोटिक में क्या नहीं आता? तो प्लांट्स नहीं आता। येस, बिकॉज अभी हमने प्लांट्स पढ़े क्या हैं? प्लांट्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बिकॉज दे आर लिविंग इन नेचर, और जो चीज़ लिविंग होती है मीन्स इट इज़ बायोटिक इन नेचर। तो प्लांट्स बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, एबायोटिक में इंक्लूड नहीं होते। अगर हम बात करें एबायोटिक इन्वायरमेंट की, तो एबायोटिक में हमारी क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे? लाइक सॉइल, वाटर, एयर, ओके, सच। नेक्स्ट वन, द एनवायरमेंट विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। एंथ्रो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से जो एनवायरमेंट क्रिएट होगा, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन, the group of organisms which convert light into food, it is known as autotrophs। mainly जो plants होते हैं, producers होते हैं, they capture light from the sun and convert it into food, that food is known as carbohydrate, glucose बनाते हैं प्लांट्स अपनी लीव्स में। आपने क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कि किस तरह से प्लांट्स जो होती हैं सन रेज को कैप्चर करके क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में। ठीक है, फूड क्या बनता है? वो ग्लूकोज बनता है, दैट इज C6H12O6। ओके, नेक्स्ट वन, इन प्लांट्स the plants which produce food themselves through photosynthesis, they are known as phototrophs। next one, the ecosystem component feed on producers or consumers, they are called heterotrophs। okay, जो producers को feed करते हैं या consumers को feed करते हैं, they are referred as heterotrophs। we humans and animals are fall in the categories of heterotrophs because we are not directly synthesize our own food just like plants they can plants have a miracle power because they can synthesize their own food because they are phototrophs, but we humans and animals are not able to do so we just depends on plants and some other herbivores, so we are referred as heterotrophs। next one, the heterotrophs feed on plants are known as primary consumer, they are referred as herbivores। जो डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा, सपोज कोई प्लांट है,
प्लांट को, सपोज प्लांट में कोई घास है, ग्रासेस हैं, उस ग्रासेस को किसने खाया, इट इज़ ईटन बाय सम काव और डियर, ठीक है, डियर ने खाया। सो डियर इज़ अवर प्राइमरी कंज्यूमर। सो हेटरोट्रॉप्स में जो डायरेक्टली प्लांट को खाएगा दे आर रिफर्ड एज हर्बिवोरस। नेक्स्ट वन, द हेटरोट्रॉप्स विच फीड मीट एंड कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे आर रिफर्ड एज कार्निवोरस। ठीक है, प्लांट्स थे, प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को किसी टाइगर ने खाया। ठीक है, सो प्लांट्स हमारे मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं। डियर जो है यहाँ पे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये टाइगर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। और प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम हर्बिवोरस बोलते हैं। हर्बिवोरस, लाइक हर्बिवोरस में क्या हो सकता है, जितने भी आपने जो हर्बिवोरस एनिमल्स पढ़े हैं उसमें डियर हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गई, सब हमारे हर्बिवोरस होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं जनरली हमारी मीट खाना पसंद करते हैं, इनको मीट पसंद है, तो इनको हम बोलेंगे कार्निवोरस, जैसे टाइगर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ CNG। CNG जो होती है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज मीथेन। नेक्स्ट वन, द हेटरोट्रॉप्स फीड ऑन बोथ प्लांट एंड मीट आर नोन एज ओमनिवोरस। आपको पता है कि इस कैटेगरीज में कौन कौन फॉल होता है। ओमनिवोरस की कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स को भी इसी कैटेगरी में रखा गया ओमनिवोरस, बिकॉज ह्यूमंस में कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो प्लांट्स को फीड करेंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो मीट मांस खाते हैं, दे आर, इसलिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर रिफर्ड एज ओमनिवोरस। नेक्स्ट वन, द बेस ऑफ द फूड चेन इन ओशियन इज नोन एज फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जो ओशियन होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, उसमें जो मेन फूड चेन होती है वो उसका बेस जो होता है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एक्वेटिक सिस्टम इज जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन होता है और एक्वेटिक सिस्टम्स, अदरवाइज प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर जूप्लैंक्टन। जो जूप्लैंक्टन में याद रखना, जूप्लैंक्टन्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब वही हर्बिवोरस की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, द इकोसिस्टम कंपोनेंट विच ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। बिकॉज ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज करना। ओके, बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन, डिकम्पोजर्स इंक्लूड, तो मेनली हमारे बैक्टीरिया और फंजाई होती हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर ऑफ लार्ज साइज। कौन से इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स लार्ज साइज के होते हैं, दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें प्रोड्यूसर्स लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल। तो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं, दैट इज वाटर एंड वुड। नेक्स्ट वन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में मेन अंतर ये होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे कैन बी रीगेन, इनको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश, दे कैन नॉट बी रीगेन। ठीक है, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इनका जो यूज़ होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज दे आर लिमिटेड। नेक्स्ट वन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG इज़, LPG ये वही है जो हमारे घर में यूज़ होती है। LPG का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर CNG पढ़ा था। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसमें मेन गैस होती है हमारी मीथेन, CH4 यानी मीथेन। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे LPG का। सबसे पहली बात तो LPG की फुल फॉर्म क्या होती है। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड, कुछ लोगों को फुल फॉर्म ही नहीं याद होगी तो आप लिख लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम और G से गैस। ठीक है, LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG गैस जो होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CNG और LPG। CNG मेनली जो होती है हमारे व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती है। आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा दिल्ली में CNG बसेस चल रही हैं, तो CNG में मेन
जो गैस होती है दैट इज़ मीथेन गैस, और जो एलपीजी होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन गैस। ये आपके घर में जो नॉर्मली सिलेंडर्स आते हैं ना, जो आप कुकिंग के लिए पर्पज़ के लिए नॉर्मली सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें जो गैस होती है दैट इज़ ब्यूटेन गैस, जो कि एलपीजी गैस है। ठीक है, तो दोनों गैस का यूज़ ध्यान रखना है। सीएनजी मेनली ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ में व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती है, और एलपीजी जनरली एज अ कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट वन, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल प्लांट इज सन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, द इकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू सॉइल एंड सबस्ट्रेटम इज नोन एज एडाफिक फैक्टर। जो भी फैक्टर सॉइल से रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड एडाफिक फैक्टर। नेक्स्ट वन, द टर्म यूज टू रेफर्स द वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉफिक लेवल, इट इज कॉल्ड बायोमास। ठीक है, वेट है तो वेट से मास ध्यान रखना। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एज सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट इंक्लूड अंडर बायोमास। नॉट इंक्लूड, बायोमास में क्या इंक्लूड नहीं होता, वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोमास। ओके, तो बायोमास का मतलब होता है टर्म यूज टू रिफर द वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट ट्रॉफिक लेवल। ऑर्गेनिज्म का वेट है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनका वजन। ठीक है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबका एक मास होता है, वेट होता है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, वाटर इज़ नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका कोई वेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एज अ बायोमास। नेक्स्ट वन, प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट दे आर नोन एज एपीफाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि अगर कोई प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एपीफाइट्स। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉजिंग मच डेंजर्स टू मेन्स लाइफ बाय पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो करंट बर्निंग टॉपिक है। नेक्स्ट वन, मेजर पॉल्यूटेंट दैट कंस्टिट्यूट 90% ऑफ ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। तो 90% ग्लोबल एयर पॉल्यूशन का राज क्या है, उसका मेन कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग फोकस ऑन एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर। मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो रही है, दैट इज CO2। ठीक है, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से ही हमारा जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज देखने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट वन, द कलरलेस ऑडरलेस एयर पोल्यूशन गैसेज, एयर पोल्यूटेंट। तो कलरलेस भी है, ऑडरलेस भी है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 गैस जो है दिखाई नहीं देती है और ऑडरलेस है। ठीक है, और ये एक तरह का एयर पोल्यूटेंट भी है, याद रखना हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है ये। नेक्स्ट वन, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज आर्सेनिक। पानी में सबसे ज़्यादा पॉइजनस है आर्सेनिक। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज क्लोरीन। बहुत जनरल क्वेश्चन है, पानी की सफाई में क्लोरीन गैस पास करते हैं। जो आपके घर में होम में जो वाटर सप्लाई होती है उससे ठीक पहले उसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है, ताकि जितने भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं वो सब किल हो जाएं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट वन, द टेस्ट which has a self purification capacity of water body is known as BOD। एक self purification test होता है वाटर में, that is BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। ठीक है, सॉइल में जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उनकी बायोलॉजिकल डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। अगर BOD ज़्यादा है तो उसका मतलब वाटर में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, मटीरियल दैट कॉज BOD इंक्लूड्स, तो BOD में क्या क्या आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, इट इंक्लूड्स वुड, एनिमल वेस्ट एंड सीवेज। नेक्स्ट वन, परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ 1 ppm। इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आयरन की लिमिट कितनी रखी गई है, दैट इज़ 1 ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट वन, अ डिसीज कॉज्ड बाय मर्करी पॉइजनिंग ऑफ वाटर इन जापान 1953। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, तो बस आपसे एग्जाम्स में इतना पूछ सकते हैं कि मर्करी पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, दैट इज़ मिनीमाटा डिसीज़। ठीक है, कौन सी डिसीज़ है और ये सबसे पहली बार जापान में हुई थी 1953 में, ये थोड़ा ध्यान रखना है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है इतना कि मर्करी की वजह से कौन सी पॉइजनिंग होती है, दैट इज़ मर्करी। M फॉर मर्करी, M फॉर मिनीमाटा, याद रखना है। नेक्स्ट वन, मिनीमाटा डिसीज़ इज़ ड्यू टू, दैट इज़ ड्यू टू मर्करी टॉक्सिसिटी। ये तो अभी हमने पढ़ा मर्करी की पॉइजनिंग की वजह से मिनीमाटा हो रहा है, और मिनीमाटा वही मर्करी टॉक्सिसिटी, सेम क्वेश्चन था ये दोनों। नेक्स्ट वन है इटाई डिसीज़ कॉज्ड बाय,
तो इटाई डिसीज़ जो होती है वो कैडमियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई डिसीज़, ओके, कैडमियम टॉक्सिसिटी। अब ये जो हमारे मरकरी है, कैडमियम है, यहाँ पे हम इन्वायरमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज मरकरी का सिंबल है Hd, और कैडमियम ये जो होते हैं हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, दे आर रिफर्ड एज हैवी मेटल्स, ओके। और होता क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ का जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, दे इट कंटेन्स लॉट ऑफ हैवी मेटल्स, और ये सब जब वेस्ट सॉइल में आता है तो अल्टीमेटली सॉइल और वाटर बॉडीज़ में मिक्स होने के बाद जो मरकरी या कैडमियम जैसे हमारे हैवी मेटल्स हैं, इसके अलावा एक लेड भी होता है, लेड, तो ये भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स हैं। आर्सेनिक था भी, वाटर में आर्सेनिक हमने देखा, तो ये सारे हमारे हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज़ और सॉइल है ये हमारी पॉल्यूट हो जाती हैं। अल्टीमेटली अगर ये सब वाटर बॉडीज़ में रीच कर गया और उसी वाटर को हमने कंज्यूम करा तो अल्टीमेटली ये हैवी मेटल्स भी हमारी बॉडी में चले जाएंगे और उनकी वजह से हमें कुछ डिसीज़ेज़ देखने को मिलती हैं। तो याद रखना है आपको, मरकरी की वजह से मिनीमाटा डिसीज़ हो जाता है, और इटाई जो है कैडमियम टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ ग्रीन हाउस गैसेज आर। तो ग्रीन हाउस की जो मेन गैसेज हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो मेजर हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, जो मेजर पॉल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। इसके अलावा मीथेन, आपने पढ़ा होगा भी मीथेन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था CNG गैस, ठीक है। CNG गैस जो होती है हमारी, जिस पे व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं आजकल, उसमें मीथेन गैस जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे जो राइस फील्ड होते हैं, हमारा जो राइस होता है जिसको हम बोलते हैं ना पैडी, धान, आपको पता होगा जब हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ से भी एक गैस रिलीज़ होती है। एक आपसे क्वेश्चन पता है ऐसे बन सकता है कि बताइए कौन सी गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पैडी कल्टीवेशन के दौरान देखने को मिलती है, पैडी कल्टीवेशन के दौरान रिलीज़ होती है फील्ड से, दैट इज़ मीथेन। मीथेन यानी CH4, ओके। तो ये आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये जो चैप्टर था अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। बट आपका एक होमवर्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, किस महीने में, किस डेट को, सब आपको बताना है। और आपको उसका थीम भी पता है, 2023 में इसको सेलिब्रेट करा था, जो उसका थीम था वो आपको पता होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इतना जानकारी नहीं है तो आप सिंपल ये बता दिए कमेंट में कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ICAR एंड IRI की। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।